مہک بخاری، ٹک ٹاک بلیک میلنگ اور دوہرے قتل کا قصہ۔ مہک بخاری ایک ابھرتی ہوئی ٹک ٹاک سٹار تھیں جنہیں ان کی ماں کی خوب حمایت حاصل تھی، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا بدقسمت واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ قصہ دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ سے ہوتا ہوا قتل تک جا پہنچا۔ برطانیہ کے شہر سٹوک آن ٹرینٹ سے تعلق رکھنے والی مہک نے یونیورسٹی چھوڑ کر سوشل میڈیا کو اپنے کیریئر کے طور پر چن لیا اور پھر اپنی تمام تر توجہ اس طرف مرکوز کر دی۔ یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ مہک کے تقریباً 1,29,000 فالوورز ہو گئے اور وہ ملک بھر میں پارٹیز اور افتتاحی تقاریب میں برانڈز کی پروموشن کے ذریعے خوب پیسہ کمانا بھی شروع ہو گئیں۔ وہ اپنی والدہ انسرین، جو ان کی ویڈیوز میں اکثر موجود ہوتی تھیں، کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات پر بھی خوب نازاں تھیں۔ مگر جب انسرین 21 برس کے ثاقب حسین سے ملی تو پھر اس کے بعد ایسے واقعات ہوئے کہ جو ایک حادثے پر جا کر ختم ہوئے۔ اس کے نتیجے میں دونوں ماں بیٹی دوہرے قتل کے قصوروار ٹھہرائے گئے۔ دونوں کو عمر بھر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مہک 31 برس اور 8 مہینے قید میں گزاریں گی، جبکہ انسرین کو 26 سال اور 9 مہینے کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ سن 2019 میں انسرین اور ثاقب کی بات چیت شروع ہوئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رابطہ نمبر شیئر کیے اور پھر تقریباً روزانہ ہی دونوں بات کرتے۔ یہ تعلقات اتار چڑھاؤ کے ساتھ 3 سال تک برقرار رہے۔ لیسٹر شائر پولیس سے تعلق رکھنے والے ڈیٹ انسپیکٹر مارک پیرش نے کہا کہ ثاقب نے ان میں جو دلچسپی دکھائی اس سے انسرین بھی ان کی جانب مائل ہو گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کئی بار ہوٹلوں، ریستورانوں اور شیشہ لاؤنجز میں ملے۔ سن 2021 میں تعلقات میں کشیدگی آئی۔ انسرین تعلقات ختم کرنا چاہتی تھیں جس پر ثاقب رنجیدہ تھے۔ انہوں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے انسرین سے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یعنی ان سے تعلقات ختم نہ کریں۔ تاہم معاملات مزید بگڑ گئے اور پھر ثاقب نے یہ دھمکی دی کہ وہ ان کی ذاتی نوعیت کی ویڈیوز ان کے سابقہ خاوند کو بھیج دیں گے۔ اس سال کے اختتام پر انسرین نے سب کچھ اپنی بیٹی کو بتا دیا۔ تاہم اس بلیک میلنگ کے خلاف پولیس کو شکایت کرنے کی بجائے مہک نے معاملات کو خود ہی طے کرنے کی ٹھان لی۔ انسپیکٹر مارک پیرش نے کہا کہ ثاقب کے خاندان کو جانتے ہوئے اور ان کے ساتھ وقت بتانے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خود ثاقب کو روک دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بخاری فیملی نے پولیس کو شکایت کی ہوتی تو ایسا بالکل نہ ہوتا اور معاملات کبھی اس نہج تک نہ پہنچتے۔ اپنی والدہ کی مدد کے لیے مہک اپنے کار میکینک دوست ریحان کاروان کے پاس چلی گئی۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ آکسفورڈ شائر سے تعلق رکھنے والے ثاقب حسین کو انسرین بخاری سے ملاقات کا لالچ دے کر بلایا گیا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو 3,000 پاؤنڈ انسرین پر خرچ کیے وہ انہیں واپس دیے جائیں گے۔ ثاقب اکثر اس رقم کا تانا دیا کرتے تھے۔ ریحان نے اپنے قریبی دوست رئیس جمال اور ان کے کزن امیر جمال اور دیگر دوستوں کی مدد حاصل کی۔ دیگر دوستوں میں نتاشا اختر، صناف گل مصطفیٰ اور محمد پٹیل شامل ہیں۔ 11 فروری 2022 کے دن یہ گروپ لیسٹر میں ایک ٹیسکو سپر مارکیٹ پہنچا اور ثاقب کا انتظار کرنے لگا۔ اس منصوبے کا مقصد ثاقب پر اچانک حملہ آور ہونا تھا۔ اپنے آبائی شہر بینبری میں ثاقب لیسٹر جانے کے لیے کسی سے گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثاقب نے چند دوستوں سے پوچھا، ان میں سے ایک ہاشم اجاز الدین نے انہیں گاڑی پر وہاں لے جانے کی حامی بھر لی۔ مارک پیرش کے مطابق ہاشم کچھ نہیں جانتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ بطور دوست صرف رات کو ثاقب کو لیسٹر لے جانے پر رضامند ہوا۔ وہ اس معاملے سے بے خبر تھا۔ ان کے مطابق وہ ملزمان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اور کچھ معاملات میں شاید وہ واحد شخص ہے جو غلط وقت پر غلط جگہ پر تھا۔ ثاقب اور ہاشم ٹیسکو کار پارک میں رات کے 1:17 پر پہنچے۔ چند لمحات کے انتظار میں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ جلدی سے اس جگہ سے نکلے، لیکن اب 2 کاریں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ایک گاڑی کو رئیس جبکہ دوسری گاڑی میں ریحان تھے۔ دوران ٹرائل بتایا گیا کہ مہک اور انسرین ریحان والی گاڑی میں سوار تھیں۔ مارک پیرش کے مطابق پولیس کو فون ریکارڈ سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت مہک نے ثاقب کو کال کی تھی اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دونوں نے کیا کہا، مگر یہ واضح ہے کہ دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس فون کال کے 1 منٹ کے بعد ثاقب نے 999 پر کال کر دی۔ انہوں نے آپریٹر کو
बताया कि वो एक ऐसी गाड़ी में सवार हैं जिसका कुछ लोग ताक़ुब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पीछे आने वाली गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर सड़क से उतारना चाहती है। ये खौफनाक कॉल तकरीबन 5 मिनट तक जारी रही। साकिब और हाशिम ने ताक़ुब करने वालों से बचने की गर्ज से डबल कैरेज वे पर अपना सफ़र जारी रखा और सुर्ख इशारे पर भी नहीं रुके। मार्क पैरिश के मुताबिक पहली चीज़ वो जो बताते हैं कि उनका रास्ता रोका जा रहा है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि कार को एक गाड़ी के साथ ब्लॉक किया जा रहा है जो आगे से ब्रेक लगाने और कार को रोकने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक साकिब अपने दोस्त हाशिम से कहते हैं सैंडार्ट सैंडार्ट। ये हाशिम के लिए एक इशारा था कि वो गाड़ी भगाएं और वहां से निकलें। मार्क के मुताबिक उस वक्त आप वाज़ेह तौर पर उनके खौफ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो रेड सिग्नल पर भी रुके बगैर आगे बढ़ गए, फिर भी उनका ताक़ुब जारी था। साकिब और हाशिम के अहले खाना ने अदालत में चलाई गई 999 वाली कॉल को मीडिया पर नशर न करने की दरख्वास्त की है। इस कॉल के आखिरी लम्हात इंतहाई परेशान कुन थे। फ़ोन लाइन पर खामोशी छा जाती है और फिर ऑपरेटर साकिब से पूछता है कि क्या आप अब भी कॉल पर हैं। मार्क पैरिश के मुताबिक अब ये एक जज्बाती परेशान कुन कॉल में बदल जाती है और आप सुन सकते हैं कि वो लोग साकिब के बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे और फिर उसके बाद चीखें सुनाई देती हैं और फिर खामोशी छा जाती है। वाज़ेह है कि जूरी को हादसे से चंद लम्हे पहले साकिब हुसैन की तरफ से पुलिस को की गई कॉल की ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में साकिब हुसैन ने पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए बताया कि मास्क पहने हुए लोग 2 गाड़ियों में उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल में परेशान साकिब हुसैन ऑपरेटर को कह रहे हैं वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए हैं, वो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कार को पीछे से टक्कर मार रहे हैं बहुत तेज़ी से, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं मरने वाला हूँ। कॉल कटने से पहले एक ज़ोरदार चीख भी सुनाई देती है। रात ठीक 1:30 बजे के बाद एक रिकवरी ड्राइवर इसी शाहरा पर सफ़र कर रहा था जब उसने एक कार को दरख्त के करीब जलते हुए देखा। ये महसूस करने के बाद कि किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया, उसने अपने ट्रक के साथ सड़क को ब्लॉक कर दिया। पुलिस अफसरान तकरीबन 10 मिनट बाद वहां पहुंचे। फायर फाइटर्स भी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। आग बुझाने के बाद पुलिस अफसरों में से एक ने गाड़ी में 2 अफराद की लाशें देखी। इधर महक ने गाड़ी खुद चलाना शुरू कर दी और नताशा उनके साथ वाली सीट पर बैठ गई। फिर वो रोपोश होने के लिए वापस लेस्टर की तरफ रवाना हुए। वापसी पर वो जलते हुए मलबे के करीब से भी गुजरे। जब वो शहर पहुंच गए तो सोटन पैलेस के इलाके में घुस गए। अब वो महफूज जगह पहुंच चुके थे। उनके साथियों ने गाड़ियों से निकलकर सड़कों पर गश्त शुरू कर दी। उन्हें सीसीटीवी के जरिए रात के तकरीबन 2 बजे मुख्तलिफ मकामात पर फरवरी की सर्दी में घूमते फिरते देखा गया। फुटेज हासिल करने वाले पुलिस वालों को ये तो नहीं मालूम हुआ कि वो वहाँ क्या कर रहे थे, मगर ये ख्याल किया जाता है कि वो अपने किए पर पर्दा डालने के लिए कोशां थे। उसके बाद कुछ पैदल और कुछ को गाड़ियों पर घर छोड़ दिया गया। नताशा जो गाड़ी की मालिक थी वापस बर्मिंघम में अपने घर की तरफ रवाना हो गई। महक और उनकी वालदा अंसरीन स्टोक ऑन ट्रेंट के शुमाली इलाके की तरफ निकल गए। इधर लेस्टर शायर पुलिस कुछ ऐसा जानती थी जो इस ग्रुप को नहीं मालूम था। साकिब की 999 कॉल तफ्तीशकारों तक पहुंच गई थी और उन्होंने खुद कार नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के कैमरों से तहकीकात शुरू कर दी थी। उन्होंने अलर्ट जारी किया और वेस्ट मिडलैंड्स में 2 अफसरान ने नताशा की गाड़ी का सुराग लगा लिया था। उन्होंने इसका पीछा करना शुरू किया और बाद में उन्हें एक पेट्रोल स्टेशन पर धर लिया। ऐसा होने से पहले उन्होंने घबराहट में रईस को फ़ोन किया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया। 8 बजे से थोड़ी देर बाद महक और अंसरीन आवाज़ों से जागी तो पुलिस महक के भाई और वालिद से बातचीत कर रही थी। उस वक्त महक ने देखा कि उन्हें रईस बार बार फ़ोन कर रहा था, जो ये जानते थे कि नताशा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जब स्टाफोर्ड शायर पुलिस के अफसरान घर के मर्द अराकीन से बात कर रहे थे तो महक ने रईस को फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने दूसरे कमरे में मौजूद अपनी वालदा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें बताया गया कि वो अफसरान को क्या कहेंगी। महक ने पुलिस से झूठ बोला और कहा कि हादसे की रात वो एक सोशल मीडिया प्रोग्राम के लिए कहीं बाहर जा रही थीं। माँ बेटी को बाद में गिरफ्तार करके लेस्टर के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत के दौरान भी महक ने झूठ जारी रखा कि वो उस रात क्या करती रही थी, लेकिन जब पुलिस ने साकिब की 999 कॉल चलाई तो वो हैरान रह गई। हार मानने की बजाय वो रो पड़ी और कहा कि साकिब इतना झूठ बोलता है और वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। महक बुखारी और अंसरीन बुखारी समेत दीगर 6 अफराद
बुनियाद पर बाद में कत्ल की फर्द जुर्म ऐद की गई। उनमें से एक मोहम्मद पटेल, जिसे बाद में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था, ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई और इंकशाफ किया कि साकिब के साथ क्या हुआ था। अहम बात यह है कि उन्होंने अफसरान को बताया कि साकिब की गाड़ी को टक्कर मारने के बारे में ताक़ुब के दौरान रिहान और रईस की फ़ोन पर आपस में बातचीत हुई। जुम्मा 4 अगस्त 2023 की सपहर 18 माह के तवील इंतज़ार के बाद हुसैन और इजाज़ुद्दीन दोनों के ख़ानदानों ने अपने प्यारों के कत्ल के मुल्ज़मान का अंजाम जानने की तैयारी की। ज्यूरी ने 28 घंटे से ज़्यादा बहस की। उस दिन के शुरू में महक लेस्टर क्राउन कोर्ट के बाहर नामा निगारों को देख कर हंसी और उनकी जानिब हाथ लहराए, लेकिन ये इत्माद ज़्यादा देर कायम न रहा। जब ज्यूरी ने माँ और बेटी दोनों को दोहरे कत्ल का मुजरिम करार दिया तो वो रो पड़ी। महक और अंसरीन बुखारी के अलावा जिन 2 मुजरमान को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनमें रिहान कारवान और रईस जमाल शामिल हैं। गैर इरादी कत्ल के जुर्म में जिन 3 अफराद को सज़ा सुनाई गई है, उनमें अमीर जमाल, नताशा अख्तर और सनाफ गुल मुस्तफ़ा शामिल हैं। नताशा अख्तर को 11 बरस कैद, अमीर जमाल को 14 बरस 8 माह, जबकि सनाफ गुल मुस्तफ़ा को 14 बरस 9 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। फैसले के बाद साकिब के कज़न आदिल बहार ने BBC से बात करते हुए बताया कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए अहले खाना को किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। उन्होंने बताया कि वो हर रोज़ उन्हें याद करते हैं जब हम अदालत में निशस्त पर बैठे थे और जज ने कहा कि ज्यूरी एक फ़ैसले पर पहुँच गई है, तो उस वक्त मेरा दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करूँगा। हाशिम की याद में मुनक्कदा फुटबॉल टूर्नामेंट से खिताब करते हुए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद ज़हीर ने कहा कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तसर अरसे में उसने मुल्क और पूरी दुनिया में बहुत सारे दिलों को छू लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में फजर से शाम तक कहानियाँ सुना सकता हूँ। बहुत ज़्यादा बातें और यादें हैं। हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। एक भाई के तौर पर एक बेहतरीन दोस्त होना बहुत ख़ास चीज़ है। मोहम्मद ज़ैन ने कहा कि उन्हें तकरीबन हर जगह अपने भाई की याद आती है। टिकटॉक का वाहिद हकीकी इन्फ्लुएंसर, वो आम जिंदगी में भी एक इन्फ्लुएंसर ही थे। आप टूर्नामेंट में तमाम लोगों को देख सकते हैं। आप इनके बारे में उनके तमाम पैगामात देख सकते हैं। हर कोई उसका भाई बनना चाहता है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो हर कोई कहेगा ये मेरा भाई है, वो लाखों में एक था।